Hello and welcome to another session of Banking Bytes and the topic at hand is Input Tax Credit. आज का जो विषय है दोस्तों वो है Input Tax Credit. सवाल पहले ये बनेगा, the question will arise कि ये जो आपका टॉपिक है आखिरकार ये है क्या और ये आप पढ़ा क्यों रहे हैं. We all know that GST has been implemented and a very crucial part of GST is, guys, the Input Tax Credit. यही कारण है कि हम इस पर्टिकुलर टर्म को डिस्कस करेंगे आने वाले 5 मिनट के अंदर इन द कमिंग 5 मिनट्स, द नेक्स्ट 5 मिनट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम बात करें एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इनपुट टैक्स एंड व्हाट इज एन आउटपुट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी है. अगर एक व्यापारी को अपना व्यापार करना है, if any businessman has to execute his business, he needs raw materials, electricity, he needs skilled people, unskilled personnel and other requirements. These particular conditions fall under his basic needs for manufacturing a particular product. The tax applied on each of these services would come under the input stage and this tax would be called as the input tax. चाहे आप बात करें ज़मीन की, रॉ मटेरियल्स की, बिजली की, स्किल्ड लेबर की, इन सब पर भी एक टैक्स लगेगा जिसको उस व्यक्ति को ही बियर करना पड़ेगा. इस पूरे पर्टिकुलर स्टेज को हम कहते हैं इनपुट स्टेज और यहाँ पर जो टैक्स लगता है गाइज, दैट वुड बी कॉल्ड एज एन इनपुट टैक्स. So one thing is pretty certain that the businessman has paid his input tax. Now once the product is complete, or if I use the word finished, then comes the second and the last stage of taxation for this particular term, that is the output tax. In this particular stage, the output tax will be applied on the finished good. So आप देख सकते हैं कि उसने पहले तो टैक्स पे किया उसको बनाने में और फिर टैक्स पे किया जब वो आपका गुड कंप्लीट हो गया. There comes a possibility, a question that this guy is paying the taxes 2 times for the same thing. First for the unfinished good and second for the finished good. Here comes the refund. Here comes a possibility, a facility given by the GST called as the input tax credit. यहाँ पर हम बात करेंगे कि सरकार उस व्यापारी को देगी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट. कैसे? उसने देखा फॉर एग्जाम्पल कि द टैक्स ऑन दीज सर्विसेज टोटल इज 300. सो द बिजनेसमैन हैज ऑलरेडी पेड ₹300. नाउ once the good is finished, the tax payable, guys, is ₹500. इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ आपके लिए. This is ₹500. Now, at the time of paying this particular tax, if he has paid the input tax, he would get a refund. So the difference would be 500, that is the output tax, minus the input tax already paid, that is 300, and the difference would be 200. So guys, he would get a refund of ₹300 and that refund would be called as an input tax credit, while the payable tax or the tax payable would be ₹200. तो आप हो सकता है समझ रहे होंगे कि एक साइड आपने देखा इनपुट टैक्स सेम प्रोडक्ट पर और एक साइड आपने देखा उसी का आउटपुट टैक्स. द डिफरेंस इज द टैक्स पेएबल एंड द अमाउंट that would be given as a refund by the government would be called as an input tax credit. So as per the definition, the amount of tax deducted and refunded at the time of output, when input tax has been already paid, this particular amount would be called as an input tax credit. This is for the benefit of the businessman. तो ये है हमारा यहाँ पर आपके सामने definition about what is an input tax credit. Now, there are certain conditions in which the input tax credit will be paid. अगर वो conditions आपकी fulfill नहीं है तो आपका जो ये particular term है, जो particular refund है, that will not be paid. The 2 conditions are, number 1,
for the deposit of the input tax and also for the deposit of the output tax, there should be a tax invoice. एक tax receipt होना, whether it is in the physical form or in the electronic form, that tax receipt should be present with the businessman. उस व्यापारी के पास इसका होना जरूरी है. और second, for getting any refund, ऑल द GST रिटर्न्स, जितना भी GST के अंदर पैसा बनता है जमा करना बाय द बिजनेसमैन, दैट रिटर्न शुड बी डन विद द प्रॉपर फाइलिंग. सो ये दो कंडीशंस हैं आपकी, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. नाउ वी कम कि व्हेन डज द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज गिवन. फॉर एग्जांपल, द इनपुट टैक्स इज हायर एंड द आउटपुट टैक्स इज लोअर. अब यहां देखिएगा आप कि यहां पर जो आपका इनपुट टैक्स है दैट इज लोअर देन द आउटपुट टैक्स. पर हमने एग्जांपल क्या दिया आपको कि इनपुट टैक्स इज हायर. फॉर एग्जांपल, दिस इज 500 एंड दिस इज 300. नाउ देयर इज एन एडिशन ऑफ ₹200 दैट वुड बी कैरीड फॉरवर्ड. यहां पर उस व्यापारी को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है. द अमाउंट दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बैक टू द बिजनेसमैन वुड बी प्रोवाइडेड एट अ लेटर टाइम. यहां पर रिफंड ना करके पेमेंट वुड बी डन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल. तो देखिए लिखा भी हुआ है, इट वुड बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्वार्टर. बट अगर हम कंडीशन पर आए, जिसका एग्जांपल मैं आपको दिया भी है कि इनपुट टैक्स आपका कम है एंड आउटपुट टैक्स आपका ज्यादा है, जैसे कि यहां लिखा भी हुआ है कि आउटपुट टैक्स इज 500 एंड द इनपुट इज 300, हियर ₹200 बैलेंस वुड बी पेड बाय द बिजनेसमैन टू द गवर्नमेंट. तो देखिए दोनों कंडीशंस हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि इनपुट टैक्स आपका ज्यादा हो जाए तो वहां पर रिफंड तो मिलेगा ही, पर वो कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि वहां पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है उस गुड पर इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल टू द गवर्नमेंट. बट सेकेंड केस में, क्योंकि यहां पर केस देखा भी आपने है कि अगर आउटपुट टैक्स आपका ज्यादा है एंड इनपुट कम है आपका, तो रिफंड वुड बी डन बट द अमाउंट लेफ्ट हैज टू बी पेड बाय द बिजनेसमैन टू द गवर्नमेंट. तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल था अबाउट द इनपुट टैक्स क्रेडिट. If you have any doubts, write those doubts in the comment section or you can mail me and I would ensure from today कि आज से मैं आपके सारे मेल्स का रिप्लाई करूं. My mail ID is kush.pandey@adda247.com. Thank you so much. Keep on watching the Banking Bites. Peace out.